Hello students, once again welcome back to your geography class for lesson number 4, that is exogenetic processes part 2. Students, we have already started with the erosional work by glacier, and we know that glacier is an important agent of erosion. The glacier carries sediments with them. These sediments are called moraines. Moraines are classified into three according to the deposition of the sediments. When sediments are deposited towards the bank of the river at the side of ground की तरफ जब sediments collect होते हैं, so that is what known as ground moraines. When sediments are being collected at the river bank inside the river के अंदर की तरफ जो है वो जो उसका किनारा होता है वहाँ पर जब सेडिमेंट्स कलेक्ट होते हैं, सो दैट इज़ व्हाट नोन एज मीडियल मोरेन्स. व्हेन सेडिमेंट्स आर बीइंग कलेक्टेड एट द एंड ऑफ द रिवर और द माउथ ऑफ द रिवर, दैट इज़ व्हाट नोन एज टर्मिनल मोरेन. दैट मीन्स ग्लेशियर्स जब आता है अपने साथ रिवर के साथ बह कर आता है तो अपने साथ बहुत सारा जो है सेडिमेंट लेकर आता है वो, एंड वैन जब वो ग्राउंड की तरफ आकर कलेक्ट होते हैं तो उसे ग्राउंड मोरैन कहते हैं. जब वो रिवर के अंदर की तरफ कलेक्ट होते हैं साइड में तो उसे कहते हैं मीडियल मोरैन. और जहाँ पर रिवर जो है वो जस्ट गोइंग टू एन एंड, जहाँ पर वो क्या होता है लैंड पोर्शन से आकर मीट करता है, वहाँ पर जो है वो उसे कहते हैं टर्मिनल मोरैन. सो दीज आर 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ transportational and depositional work by glacier known as moraines. Now we'll proceed to the next erosional agent, that is wind. Work of wind and landforms. We know that what is wind. In a small standard we have learned about the wind, that the movement of air is called wind, right? Wind is a gaseous agent of erosion, and the erosional, transportational and depositional work of wind is more prominent in desert and semi-arid regions, and this erosional, transportational and depositional work of wind leads to the formation of different landforms. Due to erosion, mushroom rock, deflation hollow and yardungs are being created. Due to the transportational and depositional work of wind, sand dunes, barchans, safes, ripple marks and Lewis plains are formed. We will see about them one by one in detail so that we can understand it more precisely. First one is mushroom rocks. We know that winds are blowing at a different velocity. उसका जो है वो विंड की एक डेंसिटी होती है, कभी वो कम होती है कभी ज़्यादा होती है. Mostly mushroom rocks are formed when wind blow in lower layer. Due to high density, the lower part of the rock eroded more as compared to the upper part. Mostly ऐसा होता है कि अगर लोअर पार्ट की तरफ जो है वो विंड का जो है वो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो रॉक का जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है ज़्यादा इरोड हो जाता है इन कंपेयर टू द अपर पार्ट. सो व्हेन वी विल सी, सो वी कैन सी दैट द पोर्शन विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द इरोजन, जो एक पूरा वो जो इरोजन के बाद जो रॉक का एक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो जाता है, इट लुक्स लाइक अ मशरूम. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मशरूम रॉक्स. नेक्स्ट वन, when deflation hollows. What is deflation hollows? When the wind has removed sand down to a layer. एक्चुअल जो लेयर होती है उससे जो है वो नीचे की तरफ हॉलो जैसा क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द इरोजन बाय द विंड. So it leads to the formation of deflation hollows. Next one is yardungs. What is yardungs? Actually yardungs are formed due to the dual work of erosion as well as transportation by the wind. So you can see that due to the this erosion by wind, these rocks, or we can say that the layer of the soil it get eroded, and due to the transportational work different types of gaps are being formed in the rocks, and therefore it is look like that बीच बीच में जो है वो hurdles जैसे नज़र आते हैं और बहुत सारे parallel lines जैसी नज़र आती है. That is what known as yardungs. Okay. Now transportation and depositional work by wind.
अभी जो है इरोजनल वर्क के 3 डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हमने देखे, मशरूम रॉक्स, डिफ्लेशन हॉलोज एंड यार्डंग्स, ये इरोजनल वर्क हुआ. नाउ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशनल वर्क बाय विंड. Sand particles that blow with the wind are of different shape and size. We know that they are of different types and different shapes. Those particles which are very fine are carried over a longer distance, while the longer ones get transported to shorter distance only. ऐसे sand particles जो बहुत फाइन होते हैं, लाइट वेट होते हैं, वो विंड के साथ बहुत लंबे, बहुत दूर तक का जो है वो क्या होते हैं, इरोड होकर जाते हैं. बट दोज विच आर वी कैन से दैट विच आर मोर इन साइज, और जिसकी जो है वो जो ज़्यादा हैवी होते हैं या बड़े होते हैं सैंड पार्टिकल्स, तो वो क्या होते हैं, ड्यू टू इट्स वेट दे विल नॉट गेट इरोडेड टू अ वेरी लॉन्गर डिस्टेंस. तो वह शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होते हैं, नियर बाय इरोडेड होते हैं. एंड ड्यू टू दैट when these sand particles get deposited in desert and semi-arid climates, it results to a specific landforms, that is sand dunes, barchans, seeps, ripple marks and Lewis plains. What are these actually? I'll explain you one by one. First one is sand dunes. Sand dunes are just look like a hill shape. When wind blows across the desert, these sand dunes are being created. Normally जो है वो जब wind blow होती है तो जहाँ पर से जितनी उसकी velocity या speed होगी उसके हिसाब से क्या होता है, वो sand particle एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह deposit कर देती है, और उसकी वजह से क्या होते हैं, small hill type जो है shape form हो जाते हैं. That is what known as sand dunes. Next one is barchans. Barchans is a crescent shape शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स. क्रिसेंट जैसा होता है मून का, आपने देखे क्रिसेंट जैसा मून जो होता है, तो वैसा जो है एक पूरा एक शेप फॉर्म हो जाता है ड्यू टू द शिफ्टिंग. इट इज़ ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स. इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन स्टेडी विंड ब्लो इन वन डायरेक्शन. एक ही जैसे जो है वो एक ही डायरेक्शन में जब विंड ब्लो होती जाती है कंटिन्यू, तो उसकी वजह से जो है वो इस तरह के बार्चन्स जो है फॉर्म होते हैं विच आर एक्चुअली लुक लाइक अ क्रिसेंट शेप. नेक्स्ट वन इज सीप्स. Seeps are longitudinal dunes generally oriented in a direction parallel to the prevailing wind. जैसे विंड का डायरेक्शन होगा उसी के हिसाब से क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल टाइप, लॉन्गिट्यूडनली वर्टिकली क्या होते हैं वो ड्यून्स जो है वो फॉर्म होते जाते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर नोन एज सीप्स. नेक्स्ट वन इज रिपल मार्क्स. These ripple marks are formed in sandy bottoms by moving waves of wind. जैसे waves आती है ना, अपर लोअर विंड, जैसे वेव्स का मूवमेंट होता है, जस्ट लाइक दैट winds are also having the movement like a wave, and that's why we can see that it is just formed a landform known as ripple marks. Next one is Lewis plain. These are flat areas which are being covered by fine silt deposits. मोस्टली जो है वो सिल्ट का डिपॉजिट जो होता है तो उसकी वजह से एक प्लेन जैसे एरिया फॉर्म हो जाता है, दैट इज़ व्हाट नोन एज लुइस प्लेन. सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न अबाउट द इरोजनल वर्क ऑफ विंड. इट इंक्लूड्स 3 लैंडफॉर्म्स, मशरूम रॉक्स, डिफ्लेशन हॉलोज एंड यार्डंग्स. Likewise, we have also seen the depositional and transportational work of wind. It leads to the formation of sand dunes, barchans, seeps, ripple marks and Lewis plains. I hope so that all these landforms are clear to you all. You all understood the difference in all these landforms. Now, the next important topic is erosional work of the sea waves. What are the sea waves? The up and down movement of water in the sea are known as sea waves, right? When the waves break at the coast, they bring with them water, transported stones, pebbles and sand particles, and these lead to the erosion of the coast, and due to this various landforms are being created. Due to the erosional work by sea waves, wave cut platform, sea cave, sea arcs, sea cliff and sea stakes are being created. Apart from that, if you will see the depositional and transportational work of sea waves, it leads to the formation of beaches, sandbars and lagoons.
We will see about them in detail. See, in this diagram you can see the different types of structures or landforms created due to the sea waves. Erosion by sea waves. Sea caves are mostly formed when these waves are continuously in the movement, and जब ये सी वेव्स जो है वो रॉक से आकर कंटिन्यू टकराती है, सो दैट लीड्स टू द प्रेशर ऑन द रॉक्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्रैक्स आर बीइंग क्रिएटेड, एंड दीज क्रैक्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सी केव्स. वो क्रैक्स जो है वो बड़े होते जाते हैं बिकॉज कंटिन्यूसली सी वेव्स जो है वो आकर रॉक से क्या होती रहती है, टकराती रहती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो केव जैसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है रॉक में, एंड दैट इज़ व्हाट नोन एज सी केव्स, as it is formed due to the erosional work of sea waves. Next one is sea cliffs. सी केव्स के फॉर्म होने की वजह से जो एक अपर जो है वर्टिकल फॉर्म जो है पूरा क्रिएट हो जाता है. सी केव्स जब बहुत यानी सी केव का इरोजन जब बहुत बड़ा ज़्यादा हो जाता है तो एक बहुत बड़ा गैप फॉर्म हो जाता है. उसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा जो है वो वर्टिकली क्या होता है, एक इरोजनल पार्ट जो है क्रिएट हो जाता है. दैट इज़ व्हाट नोन एज सी क्लिफ. नेक्स्ट वन इज सी आर्क. सी दीज आर व्हाट some different types of landform actually when sea waves are continuously coming towards the rock. और जब वो एक ही पार्ट पर जो है बड़ा सा पोर्शन है रॉक का और उसके कुछ एक ही पार्ट पर जो है कंटिन्यूसली रॉक जो है वो बीट होती रहती है, और उसकी वजह से जो है वो क्या होता है, जो कुछ उसका मिडल पार्ट जो होता है रॉक का वो क्या होता है, वो इट जस्ट गेट वीक, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक आर्क जैसा जो है वो फॉर्म हो जाता है. मिडल में मतलब कि पूरा साइड का जो है रॉक वैसे ही रहता है, मिडल में जैसे डोर होता है ना, केव जैसा होता है, ऐसे क्या होता है बार बार जो है वो सी वेव्स के टकराने की वजह से बीच का जो पार्ट होता है रॉक का वो इरोड हो जाता है, और उसकी वजह से जो है वो सी आर्क्स फॉर्म होते हैं. यू कैन सी क्लियरली इट इन द डायग्राम. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो सी आर्क्स होते हैं या सी केव्स जो फॉर्म होते हैं, सी आर्क्स जो फॉर्म होते हैं कंटिन्यूसली इरोजनल वर्क की वजह से क्या होते हैं, इट गेट वीक. और फिर क्या होता है, वो जो एक आर्क बना हुआ है जैसा एक कर्व जैसा पूरा रॉक का बना हुआ है, वो कंटिन्यूसली इरोजन की वजह से अपर पार्ट जो है उसका वो भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और सिर्फ दो पैरेलल रॉक्स जो है वो बाकी रह जाती है. सो दैट इज़ व्हाट नोन एज सी स्टेक. इस तरह से क्या होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स जो है वो क्रिएट होते हैं. सी this is actually clearly here you can see that in the diagram, sea caves, after that wave cut platforms, sea arcs and sea cliffs. Here you can see that water in the crack get accumulated, and due to the chemical and the hydraulic action of the seas, sea wave to erosion occurs. What is hydraulic actions? Actually pressure from the liquid, that means pressure from the water, it is known as the hydraulic action, and due to the some chemical reactions it lead to the erosion of the rock and different landforms are created. See, one by one, step by step, here you are given with the in the diagram also. पहले क्रैक फॉर्म होते हैं, फिर केव्स फॉर्म होते हैं. केव्स जब बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा इरोजन होता है, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द आर्क्स. आफ्टर दैट आर्क जो है उसका और फर्दर इरोजन होता है, तो इसकी वजह से क्या फॉर्म हो जाते हैं, स्टेक फॉर्म होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी. द इरोडेड मटेरियल एक्यूमुलेट एट द सी बेड. जो भी इरोजन होता है तो वो सी बेड में क्या होती जाता है, जमा होती जाता है. मैंने आपको बताया था ना, जैसे लैंडफॉर्म जो है वो ऑन अपर लेयर पर है, अर्थ की सरफेस पर है, ऐसे ही सारे लैंडफॉर्म्स आर वी कैन फाइंड इन सबमर्ज्ड इन द सी and oceans, right? And because of tides they keep on moving towards the coast and away from the coast, because we know that high tide and low tides are a natural phenomena and continuous phenomena. So it leads to the moving of these particles from one place to another place.
Sometimes it is moving towards the rock, towards the coast, and sometimes they are just deposited away from the coast. They become fine because of the attrition and hitting each other. Deposition of such materials occur at places where the effect of wave is less, and this leads to the formation of different landforms like beaches, sandbars and lagoons. What are these landforms? How they are created? So first one is beaches. Beaches is a landform along with the side of body of water which consists of loose particles. Actually waves जब आती है तो अपने साथ बहुत सारे लूज पार्टिकल्स लेकर आती है, एंड जस्ट इट इज़ गेट डिपॉजिटेड टुवर्ड्स द रिवर बैंक और सी का जो साइड का होता है प्लेस, वहाँ पर क्या होता है, ये पार्टिकल जो होते हैं लूज पार्टिकल ये सब एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एंड इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन वेव डिपॉजिट सैंड अलॉन्ग विद द शोर. So we can find these type of beaches at the seashore. Mostly you all also known about it, the sea waves जो अब आती है तो अपने साथ बहुत सारे, आप गए होंगे बीचेस वगैरह पर तो आपने खुद देखा होगा कि वेव्स अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती है, एंड ऑल दैट सेडिमेंट इज बीइंग कलेक्टेड at the shore and it leads to the formation of beaches. After that we are having next landform, that is sandbars. It is an area of sand grooves of fine sediments that sits above the water. वाटर के ऊपर जो है वो थोड़ा सा एक लैंड जैसा एरिया फॉर्म हो जाता है, सैंड बार कहते हैं उसे. एंड नेक्स्ट वन इज lagoons. It is a shallow body of water separated from a larger body of water by barrier island or reefs. बड़े जो वाटर बॉडी होता है उससे जो है कुछ वाटर बॉडी क्या हो जाती है, कुछ पानी का पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ सम बैरियर, कुछ रुकावट की वजह से. इट मे बी अ रीफ, इट मे बी अ बैरियर आइलैंड एट्सेट्रा. तो उसकी वजह से जो एक लैंडफॉर्म क्रिएट होता है उसे कहते हैं लेगून्स. So it is all about the different landforms which are created by the depositional work of the sea waves. Now the next one is work of groundwater and landforms. What is groundwater? See students, when the rainwater seeps below the earth's surface through porous rock or the cracks in the rocks, these water accumulates in the non-porous layer of the rocks, and this accumulated water is called groundwater. We know that rainy season is for 4 months, right? वो 4 month में क्या होता है, जब when it continuously raining, so it leads to the seepage of the water in the rocks. Water जो क्या होता है absorb हो जाता है in soft rocks. जो रॉक सॉफ्ट होती है वो क्या करती है, पोरस रॉक या सॉफ्ट रॉक जो होती है वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करती जाती है, एंड वाटर इज जस्ट एक्यूमुलेटेड इन देम, परकोलेट इन देम, एंड इट्स लीड्स टू द accumulation of the water which is known as groundwater. The soluble mineral in the water get dissolved and flow with the groundwater, and this is the erosional work of groundwater. We know that in rocks various minerals are there. Rock is a mixture of various minerals only. ठीक है, तो ये जो minerals होते हैं जब ये groundwater के साथ dissolve होते हैं, so it leads to the formation of different landforms due to the erosional work of the groundwater. So we can see that different erosional works which lead to the which leads to the formation of landforms are sinkhole, limestone caves, stalactites and stalagmites. What are these? So first of all we will see about the sinkhole. Sinkhole is a landform produced mainly in limestone region. लाइमस्टोन के जो पार्ट होते हैं जहाँ पर लाइमस्टोन्स होते हैं ज़्यादा, वहाँ पर हमको जो है इस तरह का लैंडफॉर्म नज़र आता है. ड्यू टू द इरोजन इट इज़ मेनली फॉर्म्ड ड्यू टू रॉक विच कंटेन्स लाइमस्टोन. ऐसी रॉक जिसमें लाइमस्टोन होता है तो वो क्या होती है, वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाती है, एंड फाइनली इट लीड्स टू द इरोजन, और इरोजन की वजह से क्या होते हैं, ऐसे सिंक होल्स जो है वो फॉर्म होते हैं. ओके, नेक्स्ट वन limestone. Limestone caves, they are formed due to the dissolution of limestone. When limestone dissolve in water,
होल जैसा जो है वो फॉर्म होना, एक डिफरेंट लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। और नॉर्मली जो है वो जब वाटर जो है वो डिज़ोल्व होती जाता है, वाटर में जो है वो जब लाइमस्टोन डिज़ोल्व होती जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक बड़ा एरिया फॉर्म हो जाता है, केव जैसा एरिया फॉर्म हो जाता है, और उसे कहते हैं लाइमस्टोन केव्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग टू डिफरेंट लैंडफॉर्म्स नोन एज स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट। दीज आर पिलर्स formed from alkaline deposition in the caves in limestone areas. Salts deposit in the cave when water evaporates. जो ग्राउंड वाटर ऑलरेडी कलेक्ट होता है, परकुलेट हो चुका रहता है, उसके अंदर क्या होते हैं, सॉल्ट्स का डिपोजिशन होता है, और वो जो है उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू द सम केमिकल रिएक्शंस वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, और बाकी जो सॉल्ट रह जाता है वो डिफरेंट शेप में जो है वो नज़र आता है व्हेन दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिज़ोल्वेशन एंड इवेपोरेशन की वजह से व्हेन दे ग्रो फ्रॉम द रूफ टुवर्ड्स द ग्राउंड, क्योंकि उसमें क्या हो गया, सिर्फ वो सॉल्ट बाकी रह गया है, और उनकी ग्रोथ जो है वो, क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो रहा है ना कंटिन्यूसली, और वाटर क्या हो रहा है, सीप होते जा रहा है, तो वो वाटर अंदर सीप होते जाता है, तो उसकी वजह से उसका शेप जो है वो ऐसे नीचे नीचे की तरफ निकले हुए जो है हमको नज़र आते हैं, और पूरा जो वाटर होता है वो परकुलेट इवेपोरेट हो जाता है, तो बाकी क्या बचता है, नीचे का जो एक लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है उसकी वजह से। एंड व्हेन दिस ग्रो फ्रॉम द रूफ टुवर्ड्स द ग्राउंड, उनकी ग्रोथ अगर ग्राउंड की तरफ है, रूफ की तरफ से, तो उसे कहते हैं स्टेलेक्टाइट। एंड व्हेन it is just opposite to the stalactite, that means the growth of it is from the ground towards the roof, so it is known as stalagmite. That means it is actually alkaline deposition in the caves, especially in limestone caves, and finally क्या होता है, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट डिपॉजिट बाकी रह जाता है, एंड दिस सॉल्ट डिपॉजिट इट ग्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन, व्हेन इट इज़ from roof towards the ground it is known as stalactite, when it is from the ground towards the roof it is known as stalagmite. Okay, now the last topic of this lesson is groundwater table. What is groundwater table, students? The upper surface of the water accumulated below the ground is called the water table. जो वाटर एक्यूमुलेट होता है सरफेस पर, अपर सरफेस पर, वो क्या होता है, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से सरफेस के ग्राउंड के अंदर जो क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, तो उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर टेबल। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्राउंड वाटर टेबल आर पोरोसिटी ऑफ द रॉक्स, दैट मीन्स रॉक्स आर पोरस, सॉफ्ट और पोरस होती है, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, उसकी वजह से होता है ग्राउंड वाटर टेबल फॉर्म। अमाउंट ऑफ रेनफॉल जैसे ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होती जाएगा, वो पोर होती जाएगा अंदर की तरफ वाटर। एंड सीजन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच लीड्स टू द ग्राउंड वाटर टेबल। इसकी वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो है वो एक्यूमुलेट होता है ग्राउंड में। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीटेड विथ आवर लेसन। आई होप सो दैट this lesson, different landforms which are created by the different agents of erosion, you understood it clearly and precisely. Thank you, students.